Uh, Today I will start nuclear safety and the reliability features. This is the last lecture of the unit 3. So subject name is the power plant engineering. Outline of the today lecture, that is the nuclear power plant, layout of the nuclear power plant, basic structure of the nuclear power plant, working of nuclear reactor, components of a nuclear reactor and the reactor control, safety measure in the nuclear reactor control, conclusions. This is the first slide. थर्मल पावर स्टेशन जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा था, न्यूक्लियर रिएक्टर इस्तेमाल होता है एज अ हीट सोर्स फर्नेस की जगह पे, और इट इज़ अ ऑपरेटर जहाँ की हीट प्रोड्यूस की जाती है न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा, चेन रिएक्शन के द्वारा, एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द कन्वर्शन पावर प्लांट ओनली इन द स्टीम जनरेटिंग प्लांट। जो 6 नंबर पे न्यूक्लियर पावर जनरेशन का नंबर आता है वर्ल्ड में, जिसमें कि न्यूक्लियर पावर से ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है ड्यूरिंग द ऑपरेशन। This is the layout of the nuclear power plant in which the generator device is presented here, where the energy will be produces from the one form to another form. Concrete containment structure where the control rod core and nuclear reactor where it is working, and the pump is working for the supplying of the water according to the requirement, and the steam line after the processing of the here the where the combustion of the fuel is taking place, the steam formation will be take place, and the steam will going into the turbine section. This is the turbine blades where the expansion of the turbine taking place, and after that the energy is converted into the generator, one form to another form, and after the expansion steam will go into the condenser side where the cooling is done by the external sources, and after that if the steam is condensed into the liquid manner, the liquid condensate it is passing through the pump to the boiler, and additional water is supplied wherever the requirement in the nuclear reactor. There it is a requirement of the water for generating of the steam. Basic structure of the nuclear power plant, that is the containment structure. ये जो आप देख रहे हैं containment structure है, B जो है control rod है, ये जो आप देख रहे हैं, C reactor है, and D जो है steam generator है, एंड ई जो है स्टीम लाइन है, ये जो आप देख रहे हैं स्टीम लाइन है, एफ जो है एक पंप है, जी इज द जनरेटर जैसा कि बताया था लास्ट डायग्राम में, एच इज द टरबाइन, दिस इज द टरबाइन जहाँ की एक्सपांशन हो रहा है स्टीम का, कूलिंग वाटर कंडेंसर, दिस इज द आई, ये कूलिंग वाटर कंडेंसर जैसे कि हम बता रहे हैं कि कूलिंग टावर में से पानी लेते हैं, तो जे इज द कूलिंग टावर। तो ऑलरेडी वर्किंग इज क्लियर, हियर इट इज द स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड कंटेनमेंट स्ट्रक्चर, here it is the control rod, reactors, steam generators and the steam line are processing. Working of a nuclear reactor in which a furnace where the fissioning of the atoms can be controlled and the heat produced is utilized to raise steam directly or indirectly. The steam then drives a turbo turbine generator, जैसा कि हमने आपसे बताया कि steam प्रोड्यूस होने के बाद टरबाइन में आती है और टरबाइन से कनेक्टेड होता है जनरेटर, तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है कन्वेंशनल मैनर में। So this is the diagram, another diagram in which the working is clear, where the uranium fuel as a rod, control rods, बोरान की जो है कंट्रोल रॉड, यूरेनियम फ्यूल एज अ रॉड इस्तेमाल किया जाता है, और जो पूरी वर्किंग है वो आपकी स्टीम प्रेशर वेसल में यहाँ पे बताई गई है, जो कि स्टीम प्रेशर वेसल में वर्किंग इसकी चल रही है। रिएक्टर जो आपका लगा हुआ है न्यूक्लियर रिएक्टर, ये किस तरीके से चार्जेस हो रहा है, इसको वर्किंग यहाँ पे बताई गई है। रिएक्टर कोड जो है यहाँ पे है, जहाँ की सारी आपकी कंट्रोल रॉड्स वगैरह वर्किंग करती हैं, एंड आफ्टर दैट द वर्किंग कंप्लीट होने के बाद न्यूक्लियर फर्नेस में से, न्यूक्लियर रिएक्टर में से वर्किंग खत्म होने के बाद जो स्टीम फॉर्मेशन होती है, स्टीम को हम टरबाइन पे ले जाते हैं जहाँ की उसका एक्सपांसन होता है। अब कंपोनेंट्स यदि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट की या रिएक्टर की बात कर लें, दैट इज द फ्यूल बंडल्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लगी हुई हैं, फ्यूल बंडल्स में बहुत सारे हैं, और फ्यूल चैनल, जैसे कि हम फ्यूल चैनल का भी नाम देते हैं, इसका साइड व्यू देखेंगे तो फ्यूल चैनल कहलाएगा। प्रेशर ट्यूब जो रहती हैं वो इस तरीके से इसमें अंदर लगाई जाती हैं, जहाँ पे कि आपका फ्यूल बंडल रहता है वहाँ पे प्रेशर ट्यूब्स लगाई जाती हैं। रिएक्टर वेसल जो है वो आपका पूरा सराउंडिंग्स वाली बॉडी जो कहलाती है रिएक्टर वेसल्स की कहलाती है। एंड आफ्टर दैट दिस इज द पार्ट ऑफ कोर जो कि कंटेनिंग फ्यूल एलिमेंट्स को करता है। जब फ्यूजन की प्रोसेस होती है तो उसमें से
बोलना चाहिए कि जो आपकी रॉड्स है यूरेनियम की, उनका इस्तेमाल किया जाता है फिजन्स एक्टिविटीज करने के लिए। एंड स्पेस इज प्रोवाइडेड इन द इंडिविजुअल फ्यूल प्लेट्स टू अलाउ द पैसेज ऑफ द कूलेंट। एक स्पेस प्रोवाइड किया जाता है ताकि जितनी भी इंडिविजुअल फ्यूल प्लेट है उनको कूलेंट के लिए आगे निकाला जाए। जो फ्यूल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, या बोलना चाहिए जहाँ पे कि आपका फ्यूल एलिमेंट है जो कि फ्यूजन्स के द्वारा निकल रहा है या प्रोसेसिंग हो रही है, उसे हमने नाम दिया यूरेनियम 233, U35 और प्लूटोनियम 239। कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर एंड द रिएक्टर कंट्रोल, ये जो आप देख रहे हैं मॉडरेटेड कंट्रोल फ्यूजन्स ऑफ यूरेनियम 235। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है आपके स्लो डाउन हो रही है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्लो डाउन प्रोसेस, स्लो न्यूट्रॉन्स हो रहे हैं स्लो डाउन ड्यू टू द मॉडरेटर मटेरियल which we are used for the controlling of the fusion process। तो जो फास्ट न्यूट्रॉन है उनकी स्पीड्स को स्लो डाउन करने के लिए हमने मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। और मॉडरेटर जो रहते हैं न्यूक्लाई के फॉर्म में रहते हैं, छोटे छोटे एटम्स के फॉर्म में रहते हैं, और इनकी प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। और जो मॉडरेटर रहते हैं वो आपके H2O और DTO रहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड और डाइट्रियम ऑक्साइड, जो ग्रेफाइट के रूप में डिस्पर्स किए जाते हैं फ्यूल असेंबली के बीच में। ये सारे चीज़ें को इस्तेमाल किया जाता है। और जो DTO है दैट इज़ द बेस्ट मॉडरेटर, जिसका कि इस्तेमाल इनकी वेलोसिटी को कम करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल रॉड का इस्तेमाल कंट्रोलिंग करने के लिए रहता है कि फ्यूजन की एक्टिविटी अनकंट्रोल मैनर में ना हो, बहुत अनवांटेड एनर्जी क्रिएट ना हो। क्योंकि अपने को न्यूक्लियर सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर सेफ्टी में जाने से पहले अपने पास कंट्रोल रॉड का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम न्यूक्लियर फ्यूजन की एक्टिविटीज़ को कम कर सकें या कंट्रोल कर सकें। 3 कैटेगरी की कंट्रोल रॉड इस्तेमाल की जाती है। पहली सेट ऑफ रॉड होती है, दूसरी कोर्स रॉड होती है, तीसरा फाइन रेगुलेशन रॉड होती है। तो कंट्रोल रॉड जो है हाइड्रोजन ड्राइव होते हैं या इलेक्ट्रिकल मोटर ड्रिवन होते हैं। कंपोनेंट्स जो न्यूक्लियर रिएक्टर या रिएक्टर कंट्रोल के होते हैं वो इस तरीके से यहाँ दिखाया गया है। रिफ्लेक्टर, कोर वेसल, ठीक है ना, मॉडरेटर, गामा शील्ड्स, किस तरह की यहाँ पे से रेज निकल रही है उसको अपने को देखना रहता है। तो रिफ्लेक्टर का जो मेन काम रहता है वापस से रिफ्लेक्ट बैक करना रहता है। यदि न्यूट्रॉन कभी वापस बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसको रिफ्लेक्ट बैक करने का काम करता है। तो सराउंडेड द कोर टू द डिक्रीज द लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। यदि कोई भी न्यूट्रॉन की कुछ लॉसेस हो रही है, या बोलना चाहिए कुछ किसी तरीके से हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको वापस लाने का काम करता है रिफ्लेक्टर। न्यूट्रॉन escaping from the core enter the reflector where many collide with the reflector nuclei and then turn back into the core। तो reflector that is the part of he reflect back into the nuclear core where the neutron it is taking part of again in the nuclear reactor sections। तो ग्रेफाइट, लाइट, वाटर और बेरियम टाइप के जितने भी रहते हैं ये रिफ्लेक्टर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आगे यदि बढ़ेंगे तो आप कूलेंट को देखेंगे। कूलेंट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि जो भी हीट एनर्जी जनरेट हो रही है उसको हम कंट्रोल कर सकें। अदरवाइज बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होने से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं जो कि हार्मफुल रहती है सोसाइटी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए और एनवायरनमेंट के लिए। उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी रहता है। तो कूलेंट जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो लो MP और हाई BP का रहता है, नॉन कोरोजिव नेचर का रहता है। जो कॉमनली टाइप का जो कूलेंट इस्तेमाल किया जा रहा है वो CO2, H2O और मोल्टन सोडियम टाइप का नेचर का रहता है या हीलियम टाइप का रहता है। और यदि बात करेंगे तो कंटेनमेंट वेसल जो है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इस तरीके से लगी रहती है। सील्ड बिल्डिंग वॉल जो है इस तरीके से आपकी लगी हुई है जो कि प्रोटेक्ट करती है ताकि कोई भी अल्फा बीटा गामा रेज बाहर ना जा नहीं पाए। उनको हम अलग से तरीके से वेस्टेज वगैरह दिखा सकते हैं। बायोशील्ड जो है अंदर की तरफ लगी हुई है। रिएक्टर वेसल जो है अंदर आप देख रहे हैं जहाँ पे कि कंबशन होता है फ्यूल का। फिर वियर वॉल जो रहती है वो आपकी कॉन्क्रीट की रहती है। So radiation shielding or the biological shielding, it is necessary to protect the walls of the reactor vessels from the radiation damage and also to protect the operating personnel from the exposure to the radiations। सेफ्टी मेजर कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अपने को देखना है यहाँ पे। तो सेफ्टी मेजर्स में जो इस्तेमाल होते हैं, चूँकि रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस हो रही है फ्यूजन के द्वारा, फ्यूजन प्रोडक्ट के द्वारा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे ह्यूज अमाउंट में एनर्जी जो है निकलेगी। ह्यूज अमाउंट की एनर्जी का यूटिलाइजेशन किस तरीके से करना है ये हमें देखना रहता है। साथ ही साथ में कुछ यदि आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल इस तरह के निकल रहे हैं जो कि एयर और वाटर में मिल के हेल्थ हजार्ड इशू क्रिएट कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी रहता है।
न्यूक्लियर एनर्जी का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो इंजीनियर्ड सेफ्टी फीचर्स है उसको हमें डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम मिनिमाइज कर सकें और स्केपिंग कर सकें रेडिएटिव फिजन प्रोडक्ट्स को। द बेसिक ऑब्जेक्टिव न्यूक्लियर सेफ्टी का जो रहता है, सेफ्टी ऑफ द ऑपरेटिंग पर्सनल, जनरल पब्लिक एंड द मिनिमम इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट रहता है। 3 levels of the nuclear safety. First level, it addresses the preventions of the accident by virtue of the design, construction and the surveillance of the plant. ये रहता है फर्स्ट लेवल। सेकेंड लेवल की यदि बात करेंगे तो प्रोवाइड द सेफ्टी सिस्टम टू प्रोटेक्ट द ऑपरेटर्स एंड द जनरल पब्लिक एंड टू मिनिमाइज द प्रिवेंट डैमेज। तीसरा जो लेवल रहता है, इट सप्लीमेंट्स द फर्स्ट टू बाय एडिंग मार्जिन ऑफ द सेफ्टी इन द इवेंट्स ऑफ द extremely unlikely or the unforeseen events. Safety should be ensured in all stages from the inception of the plant to be the full-fledged commissioning and the finally decomposing. That is called a building and the core. तो बिल्डिंग जो रहती है न्यूक्लियर कोर के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, वो एक्सोथर्मल टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शंस वहाँ होती है, एंड उनका जो स्ट्रक्चर रहता है, इट इज़ मेड फ्रॉम द रिलेवेंट मटेरियल विच हैव द कैपेसिटी टू सील द आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट, ताकि जितने भी हार्मफुल रेस निकल रही है उनको हम कंट्रोल कर सकें। कोर जो होता है, इट इज ऑकर्स इन द फ्यूजन्स व्हिच इज सस्टेन टू गेट ए चेन रिएक्शन। एप्रोप्रिएट मेजर मस्ट बी टेकन टू मेंटेन द आइडियल कंडीशन। तो जो कंट्रोल रॉड के द्वारा और कोर कोरिंग के द्वारा होती हैं। कंट्रोल रॉड जिसका कि इस्तेमाल कंट्रोलिंग करने का रहता है, ताकि जो ह्यूज अमाउंट में एनर्जी इकट्ठा हो रही है उसको हम कंट्रोल कर सकें। और जो कंट्रोल रॉड रहती हैं आपकी अलग अलग तरीके से रहती हैं, जिसमें कि चेन रिएक्शंस वगैरह जो रहती हैं उनको कंट्रोल करना रहता है। एंड फ्यूल मस्ट बी रिप्लेनिश, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। जनरेशन टाइम जो फ्यूजन्स का रहता है वो आपका वन फ्यूजन टू कॉज अनदर फ्यूजन इज कॉल्ड जनरेशन टाइम। डबलिंग टाइम जो रहता है 0.693 सेकेंड्स का रहता है। Not much time to respond to a power surge. This is modified significantly. सेफ्टी मेजर जो में यदि आप बढ़ेंगे तो मल्टीपल बैरियर इस्तेमाल किए जाते हैं। देयर आर द वेरियस फॉर द वेरियस पर्पस। पहला जो बैरियर है उसमें आप देख रहे हैं क्रिस्टल फ्यूल लैक्टिस का है, ये जो आप देख रहे हैं। सेकंड बैरियर जो होता है फ्यूल रॉड क्लैडिंग ट्यूब्स के लिए रहता है। थर्ड बैरियर जो रहता है प्रेशर बाउंड्री का रहता है। फोर्थ बैरियर कॉन्क्रीट शील्डिंग का रहता है। फिफ्थ बैरियर जो आप देख रहे हैं कंटेनमेंट का रहता है। और सिक्स बैरियर जो रहता है रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट सेल का रहता है। तो इस तरीके से जो बैरियर लगाए गए हैं ताकि हमारे जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं या बोलना चाहिए हार्मफुल रेडिएशंस निकल रही हैं उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो बेसिकली दो तरीके से इनका मेजरमेंट करते हैं या बोलना चाहिए इनका रख रखाव करते हैं, ताकि हमारा जितनी भी हार्मफुल रेडिएशंस उनको हम बचा सकें। तो रेडिएशन प्रोटेक्शन रहता है, दूसरा फायर प्रोटेक्शन रहता है। तो जो लिमिटेशन रहती हैं इनकी कंपोनेंट फेलोर की, वो मिसाइल्स रहती हैं, फ्लडिंग रहती है। बहुत ज़्यादा यदि दबाव आएगा या बोलना चाहिए बहुत ज़्यादा फ्लडिंग होगी तो उस कारण से इनकी लिमिटेशंस खत्म हो जाती हैं। तो ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखाए गए हैं जबकि शट डाउन होता है रिएक्टर, तो कंट्रोल रॉड का किस तरीके से बिहेवियर रहता है वो सारी चीज़ें देखने लायक रहती हैं। क्योंकि जब कभी आप वर्किंग शट डाउन अचानक से करेंगे तो जो एबनॉर्मल रेडिएशन पार्ट है या रेडिएटिव पार्ट्स हैं वो नज़र आएंगे या बोलना चाहिए वो आपके हाईलाइटेड हो जाएंगे, सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। तो उसको हटाने के लिए हम लोग इस तरह के डिज़ाइंस करते हैं। मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पावर प्लांट जहाँ पे कि यदि मॉनिटर प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो रेडिएशंस किसी भी तरीके से कभी भी निकल सकते हैं। उनकी मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ रेडिएशन शील्ड लगानी बहुत ज़रूरी है। और रेडिएशन शील्ड लगा के फिर हम वापस से उसको अपने अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर में भेज सकते हैं। इफेक्टिव डोज रहती है होल बॉडी की, वो ये रहती है मैक्सिमम ऑफ द 330 MSV इन एनी ईयर। इक्विवेलेंट डोज आई लेंस वगैरह जिसकी स्किन की रहती है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए रहती है। एनुअल लिमिट और इनटेक की रहती है। अप्रेंटिसशिप एंड स्टूडेंट्स की रहती है। इक्विवेलेंट डोज रहती है आई स्किन के लिए। वाटर डिस्पोजल्स रहता है। ये जो आप देख रहे हैं यूरेनियम माइनिंग है, जहाँ पे फ्यूल इनरिचमेंट होता है, पावर जनरेशन होती है। वेस्टेज डिस्पोजल आपके सॉइल्स में किया जाता है।
ताकि रेडिएशंस कहीं हार्मफुल ना बने। प्रॉपर इमरजेंसी रिस्पांस प्लान होता है ताकि हम एक्सीडेंट जैसी जो भी हैपनिंग्स हो रही है उनको कंट्रोल कर सकें बाय द ह्यूमन एरर। कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि ह्यूमन एरर की वजह से एक्सीडेंट की प्रॉब्लम बनी रहती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस तरह के अरेंजमेंट कहते हैं। तो जो इंटरनल और एक्सटर्नल हजार्ड्स हैं वो इस तरीके से दिखाए गए हैं। इंटरनल हजार्ड जो रहते हैं फायर, एक्सप्लोजन, फ्लडिंग, मिसाइल टाइप के मैनर में रहते हैं, ये हैवी लोड ड्रॉप के फॉर्म में रहते हैं। जो एक्सटर्नल हजार्ड रहते हैं वो नेचुरल और मैन मेड टाइप के हजार्ड्स रहते हैं। तो नेचुरल हजार्ड जो रहते हैं अर्थक्वेक, फ्लडिंग, स्टार्म, लाइटनिंग, अदर मेट्रोलॉजिकल हजार्ड रहता है। मैन मेड जो हजार्ड रहते हैं वो एक्सप्लोजन्स रहता है, फायर रहता है और एविएशन एक्सीडेंट्स रहते हैं। कंक्लूजन की यदि बात करेंगे तो मेनली अपने पास जो न्यूक्लियर सेफ्टी के नाम पे है वो ये है कि जो भी रेज वगैरह निकल रही हैं, जो भी हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये ह्यूमन बॉडी, सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल कहलाते हैं। तो जितने भी डायरेक्शंस बताए गए हैं इनको फॉलो करना बहुत जरूरी है ताकि हम सभी चीज़ों को सेव कर सकें। तो दिस इज द टुडे लेक्चर्स। थैंक यू।